Hello everyone. Welcome to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 25th of July 2023. From today's newspaper, we will be covering these four important topics. It is about the data collection. Actually, this editorial is discussing about the credibility, or better we say that the biasness of the data towards the rural population instead of the urban population. I mean, there is no balance as per the right. Then second, it's about the ASEAN. Third is about the Delhi administration, and fourth is about the gig workers. So basically, from today's newspaper, there are very few topics which we could relate to the mains perspective. And there are small topics like gig workers, Delhi administration, and this ASEAN. It is very important with respect to the prelims as well and the mains as well. And this data collection topic is not that important, but in just nutshell, I will tell you कि यहाँ पे क्या बात हो रही है. Rest it is not that relevant with respect to the syllabus of your UPS. हमारा आज का जो मेजर फोकस होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस होने वाला है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पे और आसियान क्या है. दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्पेशल स्टेटस है उसको लेके जो अभी रिसेंटली जो आर्टिकल को अमेंड करके जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो क्या है उस पर हम बात करेंगे और जो गिग वर्कर्स है उस पर हम बात करेंगे. ठीक है. तो कमिंग टू द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट इज अबाउट द डेटा कलेक्शन. Okay, but before we start this topic, as usual, I would like to request all of you to express your support towards our channel, that is at the rate IS Cafe. And you can do it by either subscribing it, or if you're liking the video, you can even share it to your friends and like it. And as I always mentioned in the, I already mentioned in the previous lectures as well that we had started a complete UPSC course on this channel. In this, we are providing the daily Hindu editorial. Along with it, we are providing you the GS course. And we had already started the GS course with GS paper 1. It is dealing with firstly the geography portion. In the geography, we already uploaded 3 lectures related to climatology. And then the optional. As we promised that we will deliver you the two rarest options, that is the maths and botany. The lectures of maths are already uploaded by Mr. Bhuvnesh Kumar. He is a faculty for the maths. So you can just check these videos. You will be getting the Hindu video as well, the geography and the optional. I have, received certain feedbacks with respect to these videos that ma'am, please fix down the timings of the videos as well. Because right now there is no fixed time of the lectures. Like sometimes we upload the Hindu editorials late and there is no time for the maths lectures, there is no time for the GS lectures. So I appreciate that you have mentioned your concerns regarding the timing issues, and I promise that by tomorrow you will get a detailed timetable for the lectures which we will be uploading. But the overview would be saying that there would be one slot with respect to the Hindu editorial. Second slot would be with respect to GS, जिसमें geography का जो session है वो आपका चल रहा है. And the third slot would be of the optional, in which we had, uploaded, or we will be completing the complete math option. So these would be your 3 slots.
एंड इनका जो टाइम है वो हम फिक्स कर देंगे, आप उसमें आराम से आपको इजीली याद रहेगा कि कब कौन से लेक्चर्स होंगे। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक अबाउट द डेटा कलेक्शन। देखो राइटर बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो सर्वे होते हैं, स्पेशली 3 सर्वे का नाम मेंशन किया गया है, दैट इज द नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इनका जो डेटा है, कितना साउंड है ये डेटा, आई मीन क्या डेटा पे हम कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये डेटा ग्राउंड रियलिटी शो कर रहा है, या फिर बस एक ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू लिया गया, उसकी जो ग्राउंड रियलिटी को हमें पता नहीं चल रही। So the editorial is based on the soundness of the data collection procedures of some of these surveys, such as the National Sample Survey, the National Family Health Survey और Periodic Labor Force Survey। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली ये काफी ज्यादा न्यूज पे था, बिकॉज इसमें डिसेबल्ड पर्सन को एक्सक्लूड करने पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुए थे। ठीक है, कि इस सर्वे में क्या हम डिसेबल्ड पर्सन को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। तो इट हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन इन द हिंदू एडिटोरियल, राइट। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और बाकी की जो डेटा थे। तो राइटर कहते हैं कि क्या ये आपको एक साउंड डेटा प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ठीक है, अब एज पर द राइटर इट इज अ मेजर सैम्पलिंग ओवरऑल, यानी द राइटर प्रोसीडेड टू सजेस्ट अ मेजर सैम्पलिंग ओवरऑल सो दैट द सर्वे एस्टिमेट रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटी इन द कंट्री। देखो ओवरऑल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप साइड में रखो, उसको रिव्यू करो और फिर से उसके बारे में सोच के उसको एक री एग्जामिन करके एक नई चीज आप मॉडिफाई करके बनाओ। ठीक है, अगर हम लिटरल मीनिंग पे अगर फोकस करें तो राइटर कह रहा है कि ये जो आपके पास जो सैंपलिंग की जो मेथड्स है, या फिर जिस तरह से सैंपलिंग हो रही है, डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, उसका आपको एक रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि कंट्री में आप ग्राउंड रियलिटी को शो कर पाओ। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, राइटर क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी को शो कर पाओ, रिव्यू करो, यानी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम लग रही होगी अभी की जो सैम्पलिंग। तो अपने इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में राइटर बोलते हैं दैट 2011 से लेके, मतलब 2011-12 के जो सैंपल थे, तब से लेके 2019-21 के जो सैंपल्स है, यहां से यहां तक कम से कम 11 सर्वे जो है ये बात करते हैं और बोलते हैं कि हर एक सर्वे में कहीं ना कहीं जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है, और जो रूरल पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट किया गया है। यानी राइटर कह रहा है कि ये एक बायसनेस शो कर रहे हैं, ये एक आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दे रहे हैं कि 2011-12 से लेके 2019-21 के जो 11 सर्वे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, यानी कि राइटर कहता है, करता हूँ या करती हूँ, कि अगर मैं इन डेटा को कंपेयर करें तो एक प्रॉपर बायसनेस दिखाई देती है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको आप बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और जो रूरल पॉपुलेशन है उसको आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक जो ओवरऑल कंट्री है आपके, है ना, अक्रॉस द कंट्री जो टोटल ओवरऑल इंप्रूवमेंट है उसको आप सिस्टमैटिकली नहीं दिखा पा रहे। So the publication of this article led to the articles countering her point of view. Now scientific sample design. अब जैसे ही आए तो काउंटर व्यूज तो होंगे। साइंटिफिक सैंपल डिजाइन से यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अगर डेटा कलेक्ट करो तो उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच हो, और ये तरीका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ही ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। Yani, it is important to re-emphasize the point that all the surveys listed to adopt the scientific sample designs. This is widely acknowledged even at the international level. However, there can be no denying the fact that there is always a scope for improvement of sample design. तो इस फैक्ट को तो आप कभी नहीं निकाल सकते कि आप कोई भी अगर सैंपल ले रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसमें तो काफी इंप्रूवमेंट हुए, पीरियोडिक उसके रिविजन हुए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बैठे।
तो ये जो बायसेस है पॉपुलेशन का, एस्टिमेशन का, उसके बारे में राइटर बहुत ज्यादा इसमें फोकस कर रहा है, दैट ऑन द इशू ऑफ underestimation of the proportion of the urban population or overestimation of the proportion of the rural population. Is important to remember that the sample design जो है, they are not estimating the number of household. ये क्या कह रहे हैं, आप अपनी सैंपल्स या डेटा के थ्रू जो अर्बन पॉपुलेशन को अंडर एस्टिमेट करते हो, रूरल पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट करते हो, इसके थ्रू ये आपका फोकस इस चीज पे लाना चाह रहा है कि जो सैंपल है उसका एम्फेसिस पॉपुलेशन की जनगणना करना नहीं है, उसका एम्फेसिस क्या है कि जो कंडीशन है, सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है, आप उसको एस्टिमेट करो कि जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ताकि हम अपनी जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस पर फोकस कर पाए, ना कि हम जनगणना करना हमारा उद्देश्य है। जो आप ये जनगणना कर रहे हो या फिर नंबर ऑफ हाउस होल्ड कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज लाइक एन ऑक्सिलियरी इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। क्लियर है दैट द एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड और द पॉपुलेशन आर ऑक्सिलियरी इन्फॉर्मेशन। डेटा यूजर्स अप्रोप्रिएटली एडजस्ट द सर्वे बेस्ड एस्टिमेट्स, जिसमें ये इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फैक्ट है ये एक्नॉलेज किया था बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बाय रंगाजन 2001। आई होप अब ये अंडर एस्टिमेशन जो है पॉपुलेशन का वो क्लियर हो गया, और इसी से आप समझ सकते हैं कि राइटर कह रहे हैं कि ये जो एक सैंपलिंग का मेथड है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक बायस एंड रिस्पांस रेट, ये सब हम समझ चुके हैं। इज देयर अ रूरल बायस इन द नेशनल सर्वे? ऑब्वियसली एज पर द राइटर इट इज। तो आई होप इनका जो कंटेक्स्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। Now what I want you to do is to search about the National Family Health Survey. कौन उसको रिलीज कर रहा है? The National Sample Survey कौन उसको रिलीज कर रहा है? उसमें हमारा जो अभी डेटा है वो क्या है, किस पोजीशन पे, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? So this is how you can make your one answer writing prepared today. And there are only 200 students right now जो मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी ईमेल आईडी पे। दे आर कॉन्टिन्यूसली, you know, I will not say कि सारे 200 बच्चे मुझे कॉन्टिन्यूसली आंसर भेज रहे हैं, बट यस देयर आर 50 to 70 स्टूडेंट्स जो कि कंसिस्टेंटली मुझे आंसर राइटिंग जो है मेरी ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं और उनके आंसर चेक हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी आंसर राइटिंग करता है तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट मी एट phu pih876@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जो आंसर्स है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। आपको उसका जो फीडबैक है, उसका जो इवैल्यूएशन है, वो आपको डेफिनेटली विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, इट इज अबाउट द आसियान। इसमें देखो काफी दिनों से इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक है ना वो न्यूज में आ रहे हैं, और सभी पे मेजर फोकस क्या है कि क्रेडिबिलिटी पे, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपका जो फोकस है कंसेप्ट पे होना चाहिए कि ये ग्रुपिंग है क्या, इस ग्रुपिंग का उद्देश्य क्या है, इंस्टेड ऑफ स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है। So if I talk about the ASEAN, if you talk about its full form, it is the Association of the Southeast Asian Nations. ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनी थी? To promote the political and social stability amid the rising tensions of the Asia Pacific post-colonial state. इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और हर साल 8 अगस्त को आसियान डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडोनेशिया जकार्ता में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर इंडो पैसिफिक हम साउथ ईस्ट का हार्ट मान के चलते हैं, है ना, इफ साउथ ईस्ट एशिया इज द हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, ठीक है, तो जो अभी 56 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स हुई है आसियान की, जो पोस्ट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे आपको दिखे हैं, जो कि रीजनल मीटिंग्स यहाँ पे जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है अभी जुलाई 2013 में,
तो इन सब को ऑब्जर्व करके ये बेस्ट बैरोमीटर की तरह काम कर सकता है टू चेक कि इस रीजन के लेटेस्ट डायनामिक्स क्या है। ठीक है, एक एलेबोरेट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है इट इज क्रिएटेड बाय आसियान, एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसकी विजन तो है कि हमारा एक विजन है, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। देखो, अगर आप इंडेप्थ स्टडी करते हो डॉक्यूमेंट्स की, आसियान के जो आउटकम की जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं, तो पर्टिकुलरली जो जॉइंट आपके पास ये जो फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग हुई है उसका जो जॉइंट कम्युनिटी निकल है, देखो जॉइंट कम्युनिटी हर एडिटोरियल में आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है ये सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मोस्टली एक कंसेंसस के बेसिस पर काम करते हैं। तो जब ये कंसेंसस के बेसिस पर काम करते हैं तो लास्ट में ये अपने एक जॉइंट डिक्लेरेशन या फिर डॉक्यूमेंट टाइप कुछ निकालते हैं, उसको ये जॉइंट कम्युनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो निकला ये इंडिकेट करता है कि आसिया's ब्रेन अटेम्प्ट टू नेविगेट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन द प्रेजेंट डिकेड, जिसमें कोविड पैंडेमिक से भी उनको लड़ना पड़ा। ठीक है, बट चैलेंजेस जो है इनके बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से अब इनकी क्रेडिबिलिटी पे एक्चुअली डाउट किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा। Now, I want you to just remember the parts, the countries which are part of the ASEAN countries. Now, coming to the most important editorials of today's is the Delhi Ordinance controversy and about the gig workers. हमारा फोकस आज है दिल्ली ऑर्डिनेंस पे और गिग वर्कर्स। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आप यहाँ पे तीन पार्ट में, दो पार्ट में देख लेंगे कि एक है कि दिल्ली, दिल्ली है आपके पास यूनियन टेरिटरी। देखो पार्ट वन जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आपके पास तीन कैटेगरी में आता है, एक्वायर्ड स्टेट, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, राइट। तो दिल्ली आपके पास एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इस यूनियन टेरिटरी को स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड हो रखा है, राइट। इट हैज बीन प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। बट ये पूरा जो है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पे एक स्पेशल स्टेटस मिला है, फिर एक ऑर्डिनेंस आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, दोनों के बीच में टैकल हो जाता है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, फिर जाके सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो जाती है। तो व्हाट इज दिस होल इशू, इसको हम समझते हैं। ठीक है, आई एम मेकिंग अ चार्ट काइंड ऑफ इट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट अ मिनट, तो आई कैन राइट ओवर हियर, ओके। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है, इफ आई राइट अबाउट दिस, ये आया था आपके पास 1991 में। ऑलराइट, ये अमेंडमेंट क्या करता है, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली अंडर आर्टिकल 239 ए। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का 63rd अमेंडमेंट एक्ट 1991, it provides a special status under article 239 AA, and that says it is a national capital territory act, LCTA act of 1991, जिसमें हमने दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया। अब इसमें क्या बोला गया कि जो दिल्ली है इसके पास अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो होगा, जैसे कि बाकी स्टेट के साथ होता है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी इनके पास अपनी एक सरकार होगी, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे क्या है, सीएम। तो ये कोई भी लॉज बना सकते हैं स्टेट के टेरिटरी के अंदर, लेकिन तीन लॉज जो है उस पर ये नहीं बना सकते। एक हो गया आपके पास लैंड, एक हो गया आपके पास पुलिस, और एक हो गया आपके पास पब्लिक ऑर्डर। ठीक है जी, ये क्लियर है कि ये एक्सेप्शन है कि ये नहीं बना सकते हैं तीन चीजों में। और दिल्ली के जो गवर्नर है उसकी जगह यहाँ पे होते हैं आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एलजी। ठीक है, अब यहाँ पे सेटल होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई डिस्प्यूट हो जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में,
तो इन दोनों का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करता है फाइनली किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ। और पूरा मुद्दा जो है आप उसी से रिलेट कर सकते हो कि अभी क्या था, एक लॉ आ गया जिसमें आर्टिकल जो 239A है, लॉ नहीं कहेंगे, सरकार ने कोशिश करी कि इसको चेंज करने की, और बोले कि जो आपके पास एक कैटेगरी वाली जॉब्स होती है जैसे कि IAS है, IPS है, इनके जो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ दीज सर्विसेज, इसका जो पावर है वो क्या बोलते हैं कि ये जाएगा LG के पास, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो अल्टीमेटली ये पावर किसके पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। कारण कारण बहुत सिंपल है कि आर्टिकल जो 239A और ए है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तीन ग्राउंड है, क्या, पुलिस का ग्राउंड है, पब्लिक ऑर्डर का ग्राउंड है, और लैंड का ग्राउंड है, जिसपे दिल्ली सरकार लॉ नहीं बना सकती। बाकी अगर कोई भी चीज है, चाहे वो सर्विसेज हो या उनका ट्रांसफर हो, उसमें सिर्फ दिल्ली सरकार जो है लॉ बना पाएगी, यानी दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना पाएगी। अब इंटरेस्ट क्या होता है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, की सरकार ने क्या किया, रातों रात एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, यानी कि दे हैव पास एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं, जो ये लॉ है वो सर्विस को लेके जो भी चीज है उसको कौन बना सकती है, आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, जो LG होगा उसी के पास पावर होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो एक डेमोक्रेसी को खतरा आप मान सकते हो, दैट इज द इश्यूज विद दिस ऑर्डिनेंस इज रिगार्डिंग द democracy. Then it talks about the bureaucratic accountability. Then third, it talks about the independency of judiciary. Fourth, about the law making power of executive. ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जो लॉ वाइज एकदम करेक्ट है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, उसके बावजूद अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुना दिया है, उसको नलीफाई करके आपने एक रातों रात ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। एंड ऑर्डिनेंस भी जरूरी नहीं, ऑर्डिनेंस ऐसे रातों रात पास नहीं होते, स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, बट इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है ऑर्डिनेंस का, क्योंकि ये दिन ब दिन एक लेजिस्लेचर, ऑल्टरनेटिव लेजिस्लेचर की तरह काम करने लग गया। सो इट इज एब्सोल्युटली against the democracy, against the independency of judiciary, the law making power of executive, right? So this is all about what actually happened. तो इसको फिर से रिव्यू पिटिशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और उसका आगे का जो डिसीजन होगा वो उसमें सुनाया जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम न्यूज को देख सकते हैं, दैट इज दिल्ली ऑर्डिनेंस कंट्रोवर्सी। In the latest round, the legality of recent ordinance promulgated by the President to create a new scheme to regulate the services in Delhi will be scrutinized by a constitution bench. यानी ये क्या कह रहा है कि अभी जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नलीफाई कर रहे हैं, ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको जाकर स्क्रूटनाइज करेगी। ठीक है जी, द कोर्ट्स अर्लियर रीजन वॉज सिंपल। पहले तो बहुत ही आसान सिंपल सा रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया, क्योंकि नहीं है पावर अंडर 239A। अब क्या होता है उससे हम यहाँ पे देखने वाले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गिग वर्कर्स। अभी क्या हुआ है कि राजस्थान सरकार ने एक बिल पेश किया है जिससे गिग वर्कर्स के फेवर में वो कुछ बात ला रहे हैं, प्रोविजन ला रहे हैं। ठीक है, तो एक बिल है, वो एक्ट है, उसके फीचर्स पे ना जाके हमारा फोकस होना चाहिए गिग वर्कर्स क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो गिग वर्कर्स है वो क्या होते हैं। देखो, आपके पास 2020 में कोड ऑन सिक्योरिटी आया था, सोशल सिक्योरिटी, उसका जो सेक्शन 2 है वो गिग वर्कर को ऐसे डिफाइन करता है, दैट इज अ पर्सन who perform work or participate in a work arrangement
and earns from such activities outside of traditional employer or employer relationship. देखो कोई भी एक पर्सन अगर वो इस तरह से काम कर रहा है कि वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आई वांट अ जॉब तो मैं किसी कंपनी में जाऊंगी, अपना रिज्यूम दूंगी, वो मुझे सिलेक्ट करेंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे और फिर क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है या फिर एक ऑफर लेटर आता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको हर महीने की 10 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी या फिर 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 1 या 10 तारीख के साथ लेट नहीं होगा। अगर होगा तो इस तरह से आपके पास पेनल्टी है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा। अगर कुछ आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेंगे। तो वो जो एक लाइफस्टाइल है या फिर वो जो एक ट्रेडिशनल जॉब कल्चर है उसको ना करके आप जो फ्रीलांसर जैसे काम होते हैं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you talk about the Uber drivers कि पर ड्राइव उनको पैसा मिलेगा कि अगर आपने आज कोई कार में ड्राइविंग नहीं करी है तो नो पैसा, नंबर ऑफ ड्राइविंग उतना आपको पैसा मिलेगा, तो इट इज मोर लाइक अ गिग वर्कर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती है इनकी लाइफ में। आज पैसा है तो कल क्या पता एक हफ्ते तक उनके पास काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इश्यूज के बारे में बात करेंगे। और फिर आता है प्लेटफॉर्म वर्कर। देखो सारे गिग वर्कर जरूरी नहीं है कि आप उबर ही चला रहे हैं, अर्बन क्लैप कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर काम करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर। अब सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है 2020 का? देखो पहले क्या था कि लेबर को लेकर बहुत सारे लॉज थे जिनको इकट्ठा करके 4 लॉ में बदल दिया। उनमें से एक है आपके पास सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 का, ये क्या करता है, इसने 9 लॉ जो है जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे उसको कंसोलिडेट किया और एक लॉ बनाया जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 कहलाता है। और ये क्यों इतना लाइमलाइट में आया, क्योंकि इसने पहली बार क्या किया, गिग वर्कर को डिफाइन किया, प्लेटफॉर्म वर्कर को डिफाइन किया और एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया इन गिग वर्कर्स। यस, यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन द लॉ। तो व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर राइट्स विल स्टिपुलेट? तो अब ये जो गिग वर्कर्स है आपके पास स्टिपुलेट क्या करते हैं? ओके, तो अब ये जो बिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान की जो सरकार है ये क्या बात कर रही है बिल के थ्रू, दैट हम एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें हम लोगों से टैक्स मांगेंगे। टैक्स इस टाइप ऑफ सेस, सेस सरचार्ज आपको पता होना चाहिए। सेस और सरचार्ज इट इज लाइक इट्स लाइक या तो आप स्पेसिफिक चीज के लिए टैक्स मांग रहे हो या फिर टैक्स के ऊपर टैक्स मांग रहे हो, तो दैट इज योर सेस या फिर सरचार्ज। तो हम टैक्स मांगेंगे और वो टैक्स का जो पैसा है हम एक फंड में डालेंगे और वो फंड के थ्रू जो पैसा है हम गिग वर्कर्स को अपलिफ्ट करने में काम करेंगे। तो दिस इज अबाउट a bill जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी पेश किया है। But always remember, you have to focus on what is gig worker, what is social security code, what are the platform thing of workers, and what are the issues related to it, right? So I hope जब ये बिल पूरा और ज्यादा डिस्कशन होगा या फिर एक्ट बन जाएगा तो हम इस पर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, so that's it for today. I hope this is absolutely clear to all of you. If you like it, please subscribe our channel. And as I said, we are so sorry because of the timing issue. We will surely fix the time of the 3 slots from tomorrow. That is, the slot number 1 would be of your the Hindu, that is the newspaper, and the slot number 2 would be your of what, GS section जिसमें geography आपका चल रहा है, और जो slot 3 है वो आपका हो जाएगा मैथ्स ऑप्शनल का, जिसके 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, बाय मिस्टर भुवनेश कुमावत। एंड इनकी जो टाइमिंग है कल आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको भी खास प्रॉब्लम ना हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।